Hello students, my name is Nidhi. I'm an English language trainer. The purpose of today's session is to discuss which actually take position of noun in a sentence. Let's look at the definition first. So we must have heard pronouns before, we must have seen pronouns in sentences. He, she, it, those, these all words are pronouns, and it is a word which is used in place of noun or noun phrase. There are certain reasons why do we use pronouns. It looks illogical, कुछ सेंस नहीं बनता हम एक ही सेंटेंस में बार बार नाउन को रिपीट करें. Like Ram is a boy, Ram studies in 5th class, Ram is my friend. We can't say Ram, Ram, Ram again in all sentences. So that's why we need pronouns. So instead of using noun, we use pronouns to avoid the repetition of noun. Second reason why we need pronouns is that it relates the word to the other part of the sentences. People who are poor often face difficulties to get jobs. People who are poor. So who is a pronoun. It is helping in joining the word people to the rest of the sentence. This is another purpose of pronoun. Third purpose of pronoun is that it introduces subject. This is a boy. This is the boy who comes every day late. This is actually pronoun which is introducing the subject. So let's look at the different types of pronouns. It's very important to understand the types of pronoun because school time में चलता था ऐसा, college time में चलता था, हम pronoun के सिर्फ names देख लेते थे कि he, she, yourself, oneself, ये सारे words पता हैं, लेकिन कौन सा pronoun reflexive है, कौन सा relative है, कौन सा interrogative है, उतना डिटेल में नहीं जाते थे. लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, डिफेंस सर्विसेज में we get questions about types of pronoun. We get these words and options. You must have seen previous year question papers. In these questions we see these words: reflexive pronoun या relative pronoun, interrogative या intransitive pronoun. So हमें पता होना चाहिए कौन सा pronoun है, otherwise pronoun होते हुए भी हम जज नहीं कर पाएंगे कौन सा pronoun है ये. It's not difficult, it's not rocket science, trust me, बहुत easy है. एक बार आप समझ लोगे, you will remember it forever, याद रहेगा. Okay, so these are the types of pronouns. Technical से words हैं थोड़े देख लेते हैं, एक बार meaning आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ list से go through कर लेते हैं क्या क्या types हैं pronoun के. Personal pronoun, impersonal pronoun, demonstrative pronoun, relative pronouns, interrogative pronouns, reflexive pronouns, intensive pronouns, indefinite, reciprocal, distributive, dummy pronouns. तो ये कुछ types of pronouns हैं और ये एक फ्लो चार्ट है जिसमें हमें कुछ नाउन के साथ इनके एग्जाम्पल्स भी दिख रहे हैं to get better clarity of pronouns. So personal pronouns वो pronouns होते हैं जो हम सबसे ज़्यादा commonly देखते हैं, अपने आसपास यूज़ करते हैं sentences में. I, you, he, she, it, ये सारे words जो हैं ये personal pronouns होते हैं. we, you, they, object की form में भी ये यूज़ किए जाते हैं. possessive pronouns हैं जिन्हें हम noun phrases की जगह आ जाते हैं, जैसे this is mine. So my book है, it is my book, this is mine. Is it yours, ours, ये सब possessive pronouns हैं. personal possessive pronouns काफ़ी similar हैं. रिलेटिव प्रोनाउंस वो ही प्रोनाउंस हैं जो हम डिस्कस कर रहे थे, जो एक ऐसा वर्ड जो लिंक कर देगा उस नाउन को पूरे सेंटेंस से. पीपल हु, पीपल और दोज हुम, हुज, व्हाट, ये सारे वर्ड्स हम डिस्कस भी करेंगे कैसे यूज़ होते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस सेंटेंस में. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं वो प्रोनाउंस जो वापस से नाउन के पास हमें लेके जाते हैं. जैसे मैं बोलूँ कि मैं इस काम को अपने आप करूँगी, आई विल डू दिस वर्क on my own या myself. तो myself एक reflexive pronoun है. He will do it himself. Why don't you do it yourself? ये सारे words reflexive pronouns हैं and these will come generally in the end of the sentence. In the last में sentence के end में आएंगे. Indefinite pronouns वो pronouns हैं जो किसी एक specific person या चीज़ को नहीं refer करते, बहुत general होते हैं ये pronouns. Somebody, someone, something, anything, ये सारे वर्ड्स जो हैं ये आप देख रहे हो, ये हम सेंटेंसेस की फॉर्म में भी देखेंगे.
इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हैं जो क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज़ किए जाएं. हु, whom, who is your father, what is your job, ये सारे वर्ड्स जो हैं क्वेश्चंस वाले, ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हैं. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं ये 4 वर्ड्स, दिस, दैट, दीज, दोज. तो प्रोनाउंस अपने आप में इतने मुश्किल नहीं है टॉपिक समझना. थिंग्स बिकम लिटिल कॉम्प्लिकेटेड जब प्रोनाउंस को हम कंपेयर करते हैं एडजेक्टिव से या एडवर्ब से, जिसे हम डिटर्मिनर्स बोलते हैं एडजेक्टिव्स को, पर्टिकुलरली जैसे दिस, दैट, दीज. तो कभी तो ये दिस प्रोनाउन है, कभी ये दिस डिटर्मिनर है, एडजेक्टिव है. ये जो डिफरेंस है, ये जो कंपैरिजन है, ये पर्पज़ है आज के लेक्चर का. टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस तो हम करेंगे, लेकिन साथ में डिफरेंसेस पे फोकस रहेगा कि आपको पता होना चाहिए कि यही वर्ड कब प्रोनाउन बन जाएगा और यही सेम वर्ड कब एडजेक्टिव होगा. ओके, सो ये एक लिस्ट बनी हुई है पर्सनल प्रोनाउंस की, पजेसिव प्रोनाउंस की, साथ में एडजेक्टिव्स की. आप देख सकते हो जो हमने वर्ड्स अभी पीछे भी देखे. सेंटेंसेस में और क्लियर होंगे ये, बट जस्ट गिव इट अ लुक. एक बार चाहे वीडियो पॉज करके आप इन्हें एक बार देख लीजिए. सब्जेक्ट प्रोनाउंस, ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस की लिस्ट, पजेसिव एडजेक्टिव्स हैं ये, और पजेसिव प्रोनाउंस हैं ना. इफ़ यू कैन सी द डिफरेंस, दोनों में वर्ड्स में डिफरेंसेस हैं. तो ये हम डिस्कस करेंगे अभी. माई और माइन का डिफरेंस, योर और योर्स का डिफरेंस क्या है. और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस ईजी हैं. हमने अभी जैसे मैंने बताया कि ये वर्ड के लास्ट में आते हैं, और ये वर्ड्स जो होते हैं ये बहुत ईजी टू आइडेंटिफाई हैं, क्योंकि इनमें हमेशा SELF लगा है, जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ. तो ये क्लियर है. आर सेल्स, प्लूरल में सेल्स हो जाएगा. ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, ये क्लियर है. तो ये रह गया पोर्शन जो हमें डिस्कस करना भी, पजेसिव एडजेक्टिव्स और पजेसिव प्रोनाउंस का. ओके, लेट्स मूव अहेड. यहाँ पे जाके डिफरेंस बहुत क्लियर हो जाएगा हमें आज कि ये वर्ड्स कैसे डिफ्रेंशिएट किए जाते हैं. पजेसिव प्रोनाउंस, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये रिप्लेस करते हैं नाउन को, उसकी जगह लेते हैं. लेकिन पजेसिव एडजेक्टिव्स मॉडिफाई करते हैं नाउन्स को. ओके, तो नाउन की जगह लेगा पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव एडजेक्टिव मॉडिफाई करेगा. जैसे कि नीचे लिस्ट है. पजेसिव प्रोनाउन में आता है वर्ड माइन, उसमें लिखा होगा लेकिन माई बुक, माई बैग. उसमें बोलेगा वो सिर्फ दिस इज़ माइन. इज़ दिस योर्स, सिर्फ योर्स बोलेगा. उसमें योर के साथ नाउन भी होगा, इज़ दिस योर बुक. ऐसे ये वर्ड हैं हिज, हर्स, ये वहाँ भी हैं, हिज और हर्स. इट्स भी वहाँ है, दोनों साइड पे दिख रहा है आपको. आर्स और देयर्स, वहाँ आर और देयर है. तो ये डिफरेंस है. सबसे बेस्ट जो चीज़ है, जो हमेशा याद रह सकती है, जो इजी कर देगा हमारे काम को, वो लास्ट वाली चीज़ है, जो लास्ट बॉक्स बना हुआ है आपका, उधर ध्यान देते हैं हम. पजेसिव प्रोनाउंस आर नॉट फॉलोड बाय अ नाउन. इनके बाद कभी भी नाउन नहीं आता, क्योंकि ये उसकी जगह लेंगे, रिप्लेस करेंगे. लेकिन पजेसिव एडजेक्टिव्स के बाद थैंकफुली हमेशा नाउन आएगा, कोई एक्सेप्शन नहीं है इसमें. तो रॉकेट साइंस नहीं है, अब ये चीज़ें आसान हो गई. हमेशा जब भी नाउन के साथ आपको दिखेगा ये वर्ड माई समथिंग कुछ लिखा भी है, तो उसे आंख बंद करके आप पजेसिव एडजेक्टिव बोलिए, प्रोनाउन नहीं. और डिटर्मिनर लिखा है तो डिटर्मिनर बोलो. ये डिटर्मिनर है एक्चुअली में, एडजेक्टिव का भी एक और नैरो टाइप है. दोनों ऑप्शंस हैं, पजेसिव एडजेक्टिव और डिटर्मिनर. देन चूज डिटर्मिनर. डिटर्मिनर नहीं है, सिर्फ पजेसिव एडजेक्टिव और प्रोनाउन लिखा हुआ है, और माई बुक वर्ड है सेंटेंस में, तो पजेसिव एडजेक्टिव लो, प्रोनाउन नहीं. लेट्स लुक एट दीज सेंटेंसेस. आई होप आप कर पाओगे अभी ने. माई डैड्स क्लासेस वेंट मिसिंग. माई डैड्स क्लासेस वेंट मिसिंग, दोज आर माई क्लासेस. सो इस सेंटेंस के अंदर माई के साथ माई डैड्स क्लासेस लिखा है जो, तो माई के साथ है डैड्स, यानी ये पजेसिव एडजेक्टिव है. हे, दोज ग्लासेस आर माइन, ये पजेसिव प्रोनाउन है. आई कैन सी माइन थ्रू द विंडो, पजेसिव प्रोनाउन, माइन के साथ कुछ नहीं है. जेनी सीम्स प्रीटी श्योर दैट द बुक इज हर्स, बुक इज हर्स, पजेसिव प्रोनाउन. आई लाइक योर न्यू हैट, योर के साथ न्यू हैट, पजेसिव एडजेक्टिव और डिटर्मिनर. Is that your car? Your car, adjective. Is that car yours? Pronoun. We have two coats in the lost and found. We have, we pronoun,
Yours must be the smaller one. Tell me now. Yours possessive pronoun है, adjective possessive pronoun. Yours साथ में noun नहीं है. तो ये आंसर्स हैं जो हमने डिस्कस करा. My possessive adjective या determiner, mine possessive pronoun. तो you can go through the list. जो मैंने बताया आपको वही आंसर्स लिखे हैं इसमें. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सेकंड टाइप ऑफ प्रोनाउन. तो आई एम गोइंग लिटिल क्विक, थोड़ा सा फास्ट चल रही है टाइप्स ऑफ प्रोनाउन करने के लिए, क्योंकि हमें क्वेश्चंस कवर करने हैं लास्ट में. तो एक बार पार्ट्स जो टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस कर लेंगे हम. आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा स्लो करके समझ सकते हो. उसके बाद आप क्वेश्चंस और अच्छे कर पाओगे ना. क्विकली कर लेते हैं हम. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या हैं? ये सारे वर्ड्स माई सेल्फ, आवर सेल्व्स, योर सेल्फ, योरसेल्व्स, हरसेल्फ, ये सारे वर्ड्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं. ये वर्ड्स ध्यान रखना आप, ये सारे वर्ड्स. लेकिन प्रोनाउन वन इज नॉट अ पर्सनल प्रोनाउन, इट इज़ एन इनडेफिनेट प्रोनाउन. तो वन को हम इनडेफिनेट में लेते हैं. हमें पता नहीं है. वन हम जनरली यूज़ करते हैं कि वन शुड बी पंक्चुअल. जैसे वन ऐसा बोलते हैं कि अ पर्सन शुड बी पंक्चुअल, जनरली यूज़ करते हैं. वन को हम यूज़ नहीं करेंगे. रिफ्लेक्सिव में तो आएगा नहीं. वन सेल्फ आएगा और वन इनडेफिनेट में आएगा. ओके, तो यहीं पे लिख दिया मैंने, इस चीज़ को कवर अप कर दिया. देखो नीचे सेंटेंसेस हैं. आई सॉ माई सेल्फ. यहाँ पे माई सेल्फ एक पजेसिव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. माई सेल्फ. शी इमेजिन्ड हर सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. दे कंसिडर देमसेल्व्स टू बी अबव द लॉ. तो देमसेल्फ कोई वर्ड नहीं है एफ वाला, themselves ही होगा हमेशा प्लूरल में. One should not concern oneself. Oneself रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. One एक indefinite प्रोनाउन है. ओके, तो मीनिंग क्या है सेंटेंस का? One should not concern oneself with the business of others. तो एक इंसान अपने आप को दूसरे के बिजनेस में को लेकर कंसर्न ना हो, तो अपने आप को वो डिस्टर्ब ना करे, दूसरे के काम में ना दखलंदाजी करे. तो वन शुड नॉट इन्वॉल्व हिमसेल्फ, जैसे हम बोलते हैं वो रॉन्ग इंग्लिश होगा. वन के साथ वन सेल्फ. वन सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसे ही वर्ड्स हैं इंटेंसिव प्रोनाउन, इसमें भी ये साथ में आ जाते हैं. हम सेल्फ, हर सेल्फ, ये सारे जो वर्ड्स हमने करे. लेकिन सिर्फ एक ये डिफरेंस है कि ये जो वर्ड्स हैं इंटेंसिव प्रोनाउंस, ये बिल्कुल रिफ्लेक्सिव जैसे हैं. इनका फंक्शन ये है कि ये सब्जेक्ट के रोल को एम्फेसाइज करने के लिए है. समझे? एम्फेसाइज करने के लिए. देखो नीचे सेंटेंस क्या कह रहा है? आई चेक्ड ओवर दीज डॉक्यूमेंट्स माई सेल्फ. ये डॉक्यूमेंट्स मैंने खुद चेक करे हैं. आई चेक्ड ओवर दीज डॉक्यूमेंट्स माई सेल्फ. यहाँ पे माई सेल्फ अगर ना भी हो तभी ये सेंटेंस पूरा. आई चेक्ड ओवर दीज डॉक्यूमेंट्स. लेकिन रिफ्लेक्सिव में देखो पीछे सेंटेंसेस जो हमने करे, वहाँ पर आई सॉ अगर हम माई सेल्फ हटा देंगे तो दिस सेंटेंस विल लूज इट्स मीनिंग. आई सॉ डैश इन द मिरर. आई सॉ व्हाट? तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट था माई सेल्फ. तो ये जो वर्ड्स है माई सेल्फ, योर सेल्फ, अगर ये सेंटेंस के लिए बहुत ज़रूरी है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. ओके, अगर इनके बिना भी सेंटेंस पूरा हो जाएगा, अगर ये सिर्फ एम्फेसाइज करने के लिए हैं, तो ये इंटेंसिव प्रोनाउंस हैं. द प्रेजिडेंट हिमसेल्फ विल बी इन अटेंडेंस. यहाँ पे भी हिमसेल्फ सिर्फ एम्फेसिस के लिए है. तो नीचे रूल फिर से थम रूल जो है हमें ध्यान रखना है. इवन इफ यू टेक आउट इंटेंसिव प्रोनाउन आउट ऑफ द सेंटेंस, इट वुड स्टिल मेक सेंस. डोंट फॉरगेट दिस, भूलना नहीं. अभी क्वेश्चंस में आएगा, रिसेंटली आया है ये इंटेंसिव प्रोनाउन, तो सही देना उसका आंसर. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. हमने क्या डिस्कस कर लिया. अच्छा, क्विकली हमने डिस्कस करा अभी पजेसिव प्रोनाउंस. उसके बाद हमने देखा, बैक चले जाते हैं थोड़ा सा, भूले ना, जिससे हम पजेसिव प्रोनाउन को पजेसिव एडजेक्टिव से कंपेयर करा. ओके, माई बुक और माइन, योर बुक, योर्स, ये देखा. उसके बाद हमने देखा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंटेंसिव प्रोनाउन का डिफरेंस. अब हम देख रहे हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, ये 4 वर्ड्स हैं जो ब्लैक में लिखे हैं. दिस, दैट, दीज, दोज, ये 4 वर्ड्स होते हैं. दिस चेयर अगर पास है, दिस इज माई पेन. पास है तो दिस, दूर है तो दैट. सिंगुलर के साथ दिस और दैट ही आता है.
सिर्फ पास और दूर का फ़र्क है। पास्ट टेंस के लिए भी हम उसको दूर मानते हैं, तो दिस इज़ माई हाउस, दैट वॉज माई हाउस इन 1991, तो दैट लगाते हैं। प्लूरल के लिए दीज आर माई हाउसेज, दीज हो जाता है, दीज आर माई बुक्स। और अगर हम फार है, कोई चीज़ दूर है, तो वही दीज दोज हो जाएगा, दोज आर माई बुक्स। ओके, तो पास के लिए दिस और दीज, दूर के लिए दैट और दोज, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं, दिस इज़ माई हाउस, दैट वॉज माई पेन, दीज आर माई बुक्स, दोज आर माई फ्रेंड्स। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के साथ भी हमें कंपेयर करना होगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स और डिटर्मिनर्स को। तो दीज अकेला होगा अगर दिस दैट दीज सेंटेंस में, तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कोई चक्कर नहीं है, बिल्कुल बिना डरे, जस्ट मार्क इट प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। लेकिन अगर इन वर्ड्स के साथ दीज के साथ आपको दिख रहा है नाउन भी मॉडिफाई करा हुआ इसने, दीज बुक्स आर कलरफुल, तब उसे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव या डिटर्मिनर मानेंगे, उस केस में उसे हम प्रोनाउन नहीं बोलेंगे। ओके, डिटर्मिनर है तो डिटर्मिनर डिग्री क्या रहेगी, डिटर्मिनर पहले, डिटर्मिनर नहीं है सेंटेंस में तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। लेकिन प्रोनाउन नहीं मार्क करना अगर दीज है, दीज के साथ अगर नाउन है। ओके, क्योंकि मॉडिफाई कर रहे हैं सेंटेंस को। देखो एग्जाम्पल्स, शी वॉन्ट्स टू फोटोग्राफ दिस, अकेला दिस पे बात खत्म हो गई, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। शी वॉन्ट्स टू फोटोग्राफ दिस पेंटिंग, पेंटिंग साथ में है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। सिमिलरली सेकेंड सेंटेंस, दैट इज वन ऑफ माई फेवरेट्स, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये मेरा फेवरेट है। दैट बुक इज वन ऑफ माई फेवरेट्स, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो ये थंब रूल है, हमेशा एप्लीकेबल होगा, कोई एक्सेप्शन नहीं है इसका। सच अकेला है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, सच मेन, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिटर्मिनर। नाइदर इज माइन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, नाइदर लॉकेट इज माइन, डिटर्मिनर। नन is the only demonstrative pronoun that does not also function as demonstrative adjective. तो wrong English होता है अगर मैं बोलूँ I'll eat none sandwich, जैसे नीचे लिखा है I'll eat none, वो सही है, demonstrative pronoun है ये, but the same word cannot be used as demonstrative adjective. ये कब काम आएगा आपको, करेक्ट इनकरेक्ट सेंटेंसेस में। none को अगर उसने demonstrative adjective की तरह यूज़ कर रखा होगा, साथ में noun दिया होगा, तो आप उसे करेक्ट कर सकते हो, उसे इनकरेक्ट मार्क कर सकते हो। ओके, तो हमने डिस्कस करा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इन कंपैरिजन टू डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। लेट्स मूव अहेड। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब है रिलेशन जोड़ रहा है, ये नाउन को जोड़ रहा है सेंटेंस से। द प्रोनाउंस विच डिस्क्राइब द प्रीसीडिंग वर्ड इन द फर्दर सेंटेंस, जो पहले वाला वर्ड है उसे डिस्क्राइब करता है ये प्रोनाउन। ये 5 है मोस्ट कॉमनली जो यूज़ किए जाते हैं, दैट, विच, हु, हुम, हुज। इनसे जस्ट पहले एक नाउन लिखा होगा, सिटी, पीपल, कंट्री, कुछ नाउन होगा, इंफॉर्मेशन, नाउन हमने करे हैं। अगर नाउन में कन्फ्यूजन है तो पहले वाला वीडियो देखो मेरा, उससे क्लैरिटी आ जाएगी अगर आपको नहीं पता लग रहा नाउन क्या है। ओके, तो नाउन के साथ होंगे ये वर्ड्स। कुछ और लेस कॉमन रिलेटिव प्रोनाउंस भी हैं विच इंक्लूड दीज वर्ड्स, वेयर, व्हेन, हूएवर, हूसोएवर, whomever, whichever, wherever, whatsoever, whatever, ये वर्ड्स भी नाउन के साथ होंगे। पहले नाउन लिखा होगा, फिर ये वर्ड होगा और फिर आगे पूरा सेंटेंस होगा। रिलेटिव प्रोनाउंस पे बहुत लंबा सेशन होता है, रिस्ट्रिक्टिव, नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेज वाला सेशन, वो मैं कवर नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो हम अलग से डिस्कस करेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन पे सेशन करेंगे, वो हेल्प करेगा आपको काफ़ी करेक्ट इनकरेक्ट सेंटेंसेज में, गैप्स फिलिंग में, दैट विल हेल्प यू अलॉट। तो अभी हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं वो टाइप्स ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, सिर्फ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सिंपल भोले वाले सेंटेंसेस हैं, इजी टू अंडरस्टैंड। देखो, आई लॉस्ट द बुक, लेकिन बुक को और डिफाइन करना है मुझे, दैट यू लेंट मी, दैट लगा दिया रिलेटिव प्रोनाउन। आई हेल्प द ओल्ड मैन हु लिव्स डाउन द रोड विद हिज ग्रोसरीज, हु से ओल्ड मैन के बारे में और इन्फॉर्मेशन दिया। द कंप्यूटर विच बिलोंग टू माई ब्रदर is very slow, again which का use करा as a relative pronoun। could the person whose car is parked outside please move it, whose relative pronoun है।
अ मैन whom or who I had never met before greeted me in the street. ऐसा इंसान जिसे मैं पहले कभी नहीं मिली थी, उसने मुझे स्ट्रीट में ग्रीट करा. Do whatever you please, I don't care. तो यहाँ पे भी do है एटलीस्ट, है ना, whatever से सेंटेंस नहीं शुरू हुआ. Do whatever you please. Whoever decides to join us is more than welcome. तो जो हमने एक्स्ट्रा वैलिडेटिव प्रोनाउन किए थे, यहाँ पे थोड़ा सा रूल ट्विस्ट हो रहा है कि whoever सेंटेंस की बिगनिंग में आ रहा है. Whoever decides to join us is more than welcome. जो भी डिसाइड ज्वाइन करना चाहता है हमें, वो वेलकम है. ये रिलेटिव प्रोनाउन ही है. टेक whichever route is fastest. तो यहाँ पर भी ये whichever जो है ये सेंटेंस को पूरा कर रहा है. जो भी रूट है फास्टेस्ट है, वो रूट ले लो. The route which is fastest should be taken. है ना, उस तरह से उस सेंटेंस को उसने कहा है टेक whichever route is fastest. ये वर्ड्स जो हैं रिलेटिव प्रोनाउन के जो वर्ड्स हैं, ये सारे वर्ड्स हमें और भी जगह दिखेंगे. यही वर्ड्स कभी एडजेक्टिव बनेंगे, कभी एडवर्ब बनेंगे. तो वो भी डिस्कशन में नहीं ले रही हूँ. रिलेटिव प्रोनाउन को मैं भी कंपेयर नहीं कर रही हूँ. ओके, तो वो सेशन पेंडिंग है. इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, नेक्स्ट प्रोनाउन पिकअप करा मैंने. वर्ड्स टू आस्क क्वेश्चंस. ये 5 प्राइमरी इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हैं. ये वर्ड्स ध्यान रखना, 5 जो वर्ड्स हैं. हु, whom, whose, which and what. ये जो 5 वर्ड्स हैं, सिर्फ यही 5 वर्ड्स इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की तरह वर्क करते हैं. और जितने भी क्वेश्चन वाले वर्ड्स हैं वो नहीं होते इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. तो इनको आप बाय हार्ट लर्न करना पड़ेगा. हु, whom, whose, which and what. Who is coming to the party tonight? Who सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है. Whom did you ask to fill in for Mr. Smith? किसको बोला था आपने मिस्टर स्मिथ की जगह लेने के लिए? ये भी एक प्रोनाउन है. Whose is this computer? प्रोनाउन. So which will it be? $1,000 or a new sports car? सब में क्वेश्चन मार्क लगा होगा. What is this? सब में क्वेश्चन मार्क है. इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हैं ये. लेकिन जो और वर्ड्स हैं इंटेरोगेटिव, आपने और भी वर्ड सुने होंगे, देखे होंगे क्वेश्चन वाले, जैसे कि ये अदर इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स. अदर क्वेश्चन वर्ड्स ऑन द अदर हैंड एक्ट एज एडवर्ब्स व्हेन दे स्टैंड अलोन. ये वर्ड्स कभी भी ने इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस मार्क नहीं करना. बिल्कुल वैसे ही लगते हैं. देखो, हाउ डिड यू फाइंड मी. हाउ, कैसे मिली मैं आपको. हाउ डिड यू फाइंड मी. हाउ इंटेरोगेटिव एडवर्ब है, प्रोनाउन नहीं है. तो ये जो 5 हैं ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हैं. हु, whom, whose, which and what. ये. लेकिन इसके अलावा जो ये वर्ड्स हैं ये प्रोनाउन नहीं है. पर ये है क्या? ये इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स हो सकते हैं, और भी कुछ हो सकते हैं. हम करेंगे डिस्कस अलग सेशंस में. पर प्रोनाउन है फोकस आज का, तो एटलीस्ट मैंने इसीलिए लिए ये वर्ड्स. प्रोनाउन नहीं है. व्हेन आर वी लीविंग. व्हेन मॉडिफाई कर रहा है वर्ब को. लीविंग को हम कब जा रहे हैं, तो ये एडवर्ब है इंटेरोगेटिव. Why did we stay? Why did you say that? Why interrogative adverb है. When does the train arrive? When interrogative adverb है. Okay? तो when एक relative pronoun भी बन जाता है. when एक adverb बन जाता है जब sentence की beginning में आता है. और now I want to correct myself. Not when, where मुझे बोलना है. where जो है एक इंटेरोगेटिव एडवर्ब बन जाता है. where did you stay. where प्लेस वाला एडवर्ब. लेकिन where जो है ये इंटेरोगेटिव एडवर्ब के अलावा रिलेटिव प्रोनाउन भी था ना. देखो पीछे रिलेटिव प्रोनाउन जब हम कर रहे थे तो यहाँ पे जो ये वर्ड्स थे यहाँ पर where थे को लिखा हुआ है. where, तो cities where. तो ये जो वर्ड्स हैं ये हमें रिलेटिव प्रोनाउन की फॉर्म में भी मिलेंगे, एडवर्ब की फॉर्म में भी क्वेश्चंस में मिलेंगे. ठीक है, मैंने इसलिए हाईलाइट कराया है कि आगे जाके आएंगे अभी ये क्वेश्चंस में. इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स. 3 ऑफ द इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस. जो तीन वर्ड्स हमने करे, हुज, विच एंड व्हाट, ये एडजेक्टिव की तरह वर्क करेंगे. लेकिन थैंकफुली एडजेक्टिव हमेशा तब होगा जब उसके साथ में क्या होगा, नाउन होगा.
हमेशा एडजेक्टिव का कोई कंफ्यूजन नहीं है, हमेशा नाउन साथ में होगा तभी एडजेक्टिव है। देखो सेंटेंसेस, व्हाट बुक इज योर फेवरेट, व्हाट बुक, तो ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। व्हाट अकेला होता, व्हाट इज योर फेवरेट बुक ऐसे लिखा होता तो ये प्रोनाउन होता है इंटेरोगेटिव। व्हाट आर यू रीडिंग, दिस इज में इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, साथ में नाउन नहीं है। विच शर्ट शुड आई वियर, बोलो विच शर्ट, शर्ट है इसीलिए एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। तो जब भी प्रोनाउन और एडजेक्टिव का कंफ्यूजन है तो एडजेक्टिव के साथ हमेशा नाउन है, चाहे वो पॉसेसिव एडजेक्टिव करा हमने, चाहे भी हम इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कर रहे हैं, ओके डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव किया था दीज दिस वाला, तब भी साथ में नाउन आ रहा था। विच वुड यू चूज इफ यू वर मी, ये विच अकेला है, प्रोनाउन है। देखो आंसर्स हैं, व्हाट बुक इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, व्हाट आर यू रीडिंग इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, विच शर्ट एडजेक्टिव, which would you choose if you were me, pronoun. Let's start questions. So take a deep breath. अब हमें क्वेश्चंस करेक्ट करने हैं सारे, ये सारे वही क्वेश्चंस हैं जो 19, 20, 21 अभी रिसेंटली एग्जाम्स में आए हैं सीडीएस में। आई होप ये सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व कर पाएँ। ओके गेट रेडी, लेट्स लुक एट द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन से 2019 CDS 2 में आया है, I'll meet you in the third week of August. In जो हमने वर्ड्स करे प्रोनाउन था, ये in नहीं था प्रोनाउन, राइट। प्रपोजिशन है ये, आंसर प्रपोजिशन, तो धीरे धीरे लेवल अप होगा क्वेश्चंस का। प्रपोजिशन इज द आंसर। सेम ईयर द सेक्रेटरी हिमसेल्फ विजिटेड द अफेक्टेड फैमिलीज, यहाँ पर हिमसेल्फ, बोलो कौन से दो प्रोनाउन थे हिमसेल्फ वाले, रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव, राइट है। हिमसेल्फ में दो ही ऑप्शन है। अब सेक्रेटरी हिमसेल्फ विजिटेड द अफेक्टेड फैमिलीज, कैसे टेस्ट करेंगे इसे हम, प्रोनाउन तो है ये, नो डाउट प्रोनाउन सी हो गया, बट आई वांट माय स्टूडेंट्स टू गो वन लेवल अहेड, एक और लेवल अहेड होना चाहिए उनका, उन्हें पता होना चाहिए कौन सा प्रोनाउन है ये, क्या है डील ब्रेकर। अगर हिमसेल्फ हट सकता है तो इंटेंसिव, हिमसेल्फ के बिना भी सेंटेंस पूरा हो जाएगा तो इंटेंसिव प्रोनाउन, लेकिन अगर हिमसेल्फ सेंटेंस के लिए बहुत ज़रूरी है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। देखो इस सेंटेंस में द सेक्रेटरी विजिटेड द अफेक्टेड फैमिलीज, बिना हिमसेल्फ के चल रहा है सेंटेंस, है ना, सिर्फ एम्फेसाइज करने के लिए है, यानी ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, इंटेंसिव प्रोनाउन है। तो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव भी आएगा तब भी आप इसे करेक्ट कर सकते हो। ओके, सीरियस एग्जाम फर्स्ट 2020, द मैन इन डार्क ब्लू इज द वन हु मेड अस विन द मैच। क्या कर रहा है प्रोनाउन, उस नाउन को, जो पर्सन है डार्क ब्लू में वही वो इंसान है जिसने में मैच जिताया है, अभी हुआ ऐसा रिसेंटली, ब्लू वाला मैन मैच जिताया है, राइट। किसी को रेफर कर रहा है, ये प्रोनाउन जो है हु, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है, ए ऑप्शन। इस ऑप्शन में देखो रिलेटिव क्लॉज बोला है इसने, क्लॉज के लिए में दो सारे वर्ड्स मिलके है ना, ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलके पूरा क्लॉज बनता है, तो ए ऑप्शन नहीं हो सकता, रिलेटिव प्रोनाउन होगा, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन नहीं। हु हमने करा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में, हु इज़ योर फादर, पर वो तो डिफरेंट होता है, वो तो हु से क्वेश्चन शुरू होता है, क्वेश्चन मार्क होता है, तब बनता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। एफर्मेटिव नो, एफर्मेटिव सेंटेंसेस ये नहीं होते, एफर्मेटिव सेंटेंसेस ये है, एफर्मेशन है इसमें, लेकिन हमें सेंटेंस का टाइप नहीं बताना, हु अंडरलाइंड जो वर्ड है हु बताना है, रिलेटिव प्रोनाउन इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरियस एग्जाम 1 2020, व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज़, आस्क्ड द कैप्टन। लेटेस्ट प्रोनाउन है, नो, आर यू किडिंग मी, इट इज़ नॉट प्रोनाउन ना, हम आई एम श्योर आप लोग सब जानते हो प्रोनाउन नहीं है, रिलेटिव प्रोनाउन बिल्कुल नहीं है, एडजेक्टिव रहा ऑप्शन, एडवर्ब, एडजेक्टिव क्लॉज, ये एडजेक्टिव है। व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज़, व्हाट इज द न्यूज़, न्यूज़ को आगे वो मॉडिफाई कर रहा है, लेटेस्ट पूछ रहा है, तो आंसर होगा इसका बी ऑप्शन, एडजेक्टिव। क्या यहाँ कोई प्रोनाउन है इस सेंटेंस में, इस पूरे सेंटेंस में प्रोनाउन है कहीं, है, राइट। कौन सा प्रोनाउन है वो, व्हाट एक है यहाँ पर प्रोनाउन, व्हाट इज़ द लेटेस्ट न्यूज़,
और ये व्हाट एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। सीरियस एग्जाम सेकेंड 2020, दिस इज हिज पेन, हिज। और देखो उसने वही करा, पजेसिव प्रोनाउन भी दिया हमें ऑप्शन, पजेसिव एडजेक्टिव भी दिया। आई एम श्योर किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसमें होना नहीं चाहिए डाउट। अगर है तो पीछे जाओ, टेबल एक बहुत अच्छी, उसमें दोनों चीज़ें बहुत क्लियर करी है मैंने। पजेसिव एडजेक्टिव है ये क्योंकि पेन है। दिस इज हिज ऐसा होता कुछ सेंटेंस, हिज के साथ और कुछ ना होता तो पजेसिव प्रोनाउन होता, ये एडवर्ब नहीं है, वर्ब नहीं है ऑफ कोर्स। हिज एक पजेसिव एडजेक्टिव है। और अगर यहाँ डिटर्मिनर की ऑप्शन भी होती साथ में तो प्लीज़ रिमेंबर डिटर्मिनर लेंगे उस केस में हम, ओके। तो एग्जामिनर फंसाता है, हमें फंसना नहीं है। सीरियस एग्जाम सेकेंड 2020, दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन रमेश। दिस बॉय अगेन सेम अप्रोच, सेम चीज़ चेक कर रहा है एग्जामिनर हमारी। दिस बॉय एडजेक्टिव है, आंसर ऑप्शन ए रहेगा, बॉय साथ में लिखा हुआ है, ओके। ही इज स्ट्रॉन्गर प्रोनाउन होता। Serious Exam 1 2021, the man who is in the green shift is the chief of the day. जो इंसान ग्रीन शिफ्ट में है वो चीफ है। हु क्या है इस सेंटेंस में? चार ऑप्शंस हैं। प्रोनाउन तो है, पर कौन सा प्रोनाउन है? देखो इसमें कहीं रिलेटिव प्रोनाउन का ऑप्शन मिल रहा है हमें? नहीं, उसने क्या करा, हमें एग्जामिनर ने रिलेटिव नाउन दे दिया। नो, रिलेटिव नाउन कुछ होता ही नहीं है। ऐसा भी कर रहे हैं एग्जामिनर, इमेजिन कुछ ऑप्शन कुछ है ही नहीं वो इंग्लिश में। असर्टिव नाउन को असर्टिव नाउन नाउन ही नहीं है। असर्टिव एक वर्ड होता है, असर्टिव अपने आप में, असर्शन एक नाउन है, आई एम असर्टिव। लेकिन असर्टिव नाउन को टाइप्स ऑफ नाउन नहीं है, हमने किए थे पिछली बार नाउन के टाइप्स, उसमें कहीं नहीं था ना असर्टिव। तो असर्टिव नाउन नहीं है ऑप्शन, रिलेटिव नाउन नहीं है ऑप्शन, प्रोनाउन बचा ऑप्शन प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? वही चार वर्ड्स, दिस, दैट, these, those, okay? तो ऑप्शन इज ए प्रोनाउन। Serious Exam 1 2021, this time we woke up to the virus related diseases. This अकेला this होता तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ले लेते हम इसे। इसमें ऑप्शन है डेमोन्स्ट्रेटिव की, आर्टिकल, एडवर्ब, नाउन फ्रेज। अथवा रुक जाते हैं, ये थोड़ा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। This time we woke up to the virus related diseases. ऑप्शंस क्या क्या हैं देखो, उसमें जो नहीं है पहले वो हटा देते हैं। नाउन फ्रेज, नो, फ्रेज नहीं है, फ्रेज दो तीन वर्ड्स मिलके बनता है ना, नाउन फ्रेज नहीं है। आर्टिकल नहीं है ये, ए एंड द, नो। डेमोन्स्ट्रेटिव बचा और एडवर्ब बचा। एडवर्ब क्या होता है? ऐसा वर्ड जो वर्ब को मॉडिफाई करे या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे। This time we woke up to the virus related diseases. इस समय हम उठे, we woke up. और अगर आपको याद हो, मैंने बताया था कि डेमोन्स्ट्रेटिव जो होगा वो अकेला होगा, अकेला, दिस, दैट। प्रोनाउन जो होंगे वो अकेले होंगे, साथ में कहीं कुछ, साथ में कुछ लिखा नहीं होगा उसके, कोई नाउन। यहाँ पर है ना, दिस टाइम लिखा हुआ है, तो प्लीज़ इसे डेमोन्स्ट्रेटिव नहीं लेना। दिस टाइम को हम एडवर्ब लेंगे क्योंकि ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, दिस टाइम। अदरवाइज दिस बॉय एडजेक्टिव होता था हमारा, है ना। दिस बुक, ये जो दिस के साथ जब नाउन लगता था। दिस टाइम वी वोक अप, ये एक एडवर्ब है, ये एडवर्ब मॉडिफाई कर रहा है इस वर्ब को, ओके। हम अलग से एडवर्ब करेंगे तो और क्लैरिटी आएगा, सो डोंट वरी अगर आप कंफ्यूज हो गए हो। सीरियस एग्जाम सेकेंड 2022, अगेन ही हेडेड द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल which paved the way for non-violent struggle for other countries in the 20th century. तो इस इंसान ने जो ही है, इसने हेड करा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को, जिसने रास्ता खोला और नॉन वायलेंट स्ट्रगल के लिए अदर कंट्रीज़ में भी 20th सेंचुरी में। तो ये जो विच का रोल है, ये विच क्या है? इंटेरोगेटिव वाला विच नहीं है, सी ऑप्शन नहीं है। असर्टिव सेंटेंस है ये, पर हम असर्टिव नहीं लेंगे इसे। एडजेक्टिव ऑप्शन बचा और रिलेटिव प्रोनाउन, तो क्या लें इसे? एडजेक्टिव है क्या ये? नहीं है ना, रिलेटिव प्रोनाउन ऑप्शन है, ये कनेक्ट कर रहा है इस नाउन को आगे वाले सेंटेंस से, रिलेटिव प्रोनाउन। लास्ट क्वेश्चन आई गेस, सीरियस एग्जाम सेकेंड 2022 में आया था ये रिसेंटली।
वेयर देयर इज पीस फॉर सम टाइम देयर विल बी प्रॉस्पेरिटी। इस सेंटेंस में वेयर को बताना है हमें कि वेयर क्या है। पहले देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या हैं। वेयर क्या इंटेरोगेटिव है? नो, क्वेश्चन नहीं है, तो इंटेरोगेटिव गया। क्या वेयर एक एडवर्ब है? वेयर देयर इज पीस फॉर सम टाइम देयर विल बी प्रॉस्पेरिटी। ओके, होल्ड पे रखते हैं। वेयर देयर इज पीस एडजेक्टिव नहीं है, वेयर के साथ ना कोई नाउन फ्रेज नहीं दिख रहा हमें, एडजेक्टिव नहीं है। रिलेटिव प्रोनाउन और एडवर्ब में दोनों में से चूज करना है हमें। रिलेटिव प्रोनाउन कैसा था हमारा? वेयर वाला, सिटीज वेयर, कंट्रीज वेयर पीपल, ना कंट्रीज वेयर पॉपुलेशन इज हाई, अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑल्सो इंक्रीजेस, ये होता है रिलेटिव प्रोनाउन। ये क्या है? एक एडवर्ब है। ओके, इस क्लास का पर्पस ये था अभी कि रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, ये क्लैरिटी आ जाए। एडवर्ब के टाइप्स हम जब करेंगे तो और क्लैरिटी आ जाएंगी कि ये कैसे एडवर्ब्स है, कौन सी एडवर्ब है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई होप मैंने आपकी चीज़ें, मुश्किलें आसान करी हैं प्रोनाउन से रिलेटेड। अब आप थोड़ा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं जब आप क्वेश्चंस देखेंगे। और इनफैक्ट मैंने जो इजी क्वेश्चंस थे वो हटा दिए हैं इसमें, ना इससे भी इजी लेवल के क्वेश्चंस हैं प्रोनाउन के, जो एकदम से देखते ही समझ में आ जाएंगे अब आपको। रिलेटिव प्रोनाउन, और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और इट इज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर आपको याद हो, नाउन वाली क्लास में एक सेंटेंस था, लव योर नेबर एज दाई सेल्फ, एक सेंटेंस हमने देखा था उस दिन। और दाई सेल्फ को मैंने कहा था नाउन नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। मैंने उस दिन ये वर्ड यूज़ किया था। तो ये क्वेश्चन भी आया है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के, इजी वाले डायरेक्ट क्वेश्चन भी आए हैं एग्जाम में, वो हम इजीली कर पाएंगे। अब योर सेल्फ लिखा था, दाई सेल्फ भी एक आर्केक प्रोनाउन है, मीन्स अब यूज़ नहीं किया जाता। शेक्सपियर के टाइम पे योर सेल्फ को दाई सेल्फ ऐसे वाले वर्ड्स जो हैं यूज़ किए जाते थे, तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो पास्ट क्वेश्चन पेपर्स देखो, प्रोनाउन वाले क्वेश्चन सॉल्व करो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई मेक मोर वीडियोज़ जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।